morning students, myself Rashmi, here I teach you chemistry. So today we will start our new unit, that is unit first, some basic concept of chemistry. So firstly I introduce you what is chemistry and what are the application and what are the scope of chemistry in our daily life. So students, what is chemistry? Chemistry is the branch of science which deals with the study of composition, properties and structure of matter. And what are the application and the scope of chemistry in our daily life? The application of chemistry, chemistry has a very wide application, very wide scope. In the today era, it is very difficult to imagine our life without chemistry. So chemistry has a very wide application, like chemistry provides us fertilizers, pesticides, insecticides. Chemistry provides us polymers. Chemistry provides us medicines. There are a number of medicines like antipyretics, analgesics, help in cure the cancer, help in cure the AIDS. So the medicine that provide to cancer victims, they are example Taxol, cisplatin, and the medicine given to AIDS victims, example AZT, that is called azithromycin. What is matter? Anything that has mass and occupies space is called matter. So matter are classified into two categories: physical classification and chemical classification. Physical classification is further categorized into three parts: solid, liquid and gases. So what are solids? Solids are those substances which has fixed shape and fixed volume. Okay? तो solids substance जो होते हैं उनके जो particles होते हैं वो very नियर टू ईच अदर होते हैं. सॉलिड पार्टिकल बहुत ज्यादा कंपैक्ट नेचर के होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है. ड्यू टू दिस रीजन सॉलिड्स आर कॉल्ड रिजिड नेचर. सो सॉलिड्स हैव ए प्रॉपर्टी दैट इज रिजिडिटी. ओके. एंड द लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में काफी दूर दूर होते हैं. ओके. सो सॉलिड लिक्विड ऑल्सो हैव ए मेन प्रॉपर्टी. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी. So they are easily flow. Okay. And now the gases. Gases are those substances which doesn't have a fixed shape and neither fixed shape nor fixed volume. They are called gases. और gases के जो particles होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं. Fine. So ये जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, तो इनमें कोई रिजिडिटी प्रॉपर्टी कैरी नहीं होती है. जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उनकी एक अलग मेन प्रॉपर्टी है. दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी. तो जितना भी हम प्रेशर लगाएं तो गैस को हम इजिली प्रेस कर सकते हैं. इनको हम तो इस गैसेस की अगर मैं एक प्रॉपर्टी की बात करूं तो गैसेस आर द कंप्रेस नेचर, हाईली कंप्रेस नेचर एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड. So its property is compressibility. तो हमने क्या देखा? सॉलिड्स की एक मेन प्रॉपर्टी निकल के आती है रिजिडिटी, लिक्विड की एक मेन प्रॉपर्टी निकल के आती है फ्लूइडिटी, या फिर हम बोल सकते हैं लिक्विड्स आर एबल टू फ्लो. गैसेस की एक मेन प्रॉपर्टी निकल के आती है कंप्रेसिबिलिटी, मींस कंप्रेसिबल नेचर. ओके. नाउ वी डिस्कस द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. सो केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इट विल बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स: प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. Okay. Chemical classification is further categorized into two parts: pure substances and mixture. तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस वो होता है जो सेम काइंड के पार्टिकल से मिलकर बनता है. ऐसा सब्सटेंस जो सेम टाइप के पार्टिकल से, सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है, उसे प्योर सब्सटेंस बोला जाता है. इसको फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं: एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एंड व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स आर द also those substances which formed by the only one kind of particles. Suppose we have a sodium. Sodium is a element, and in our periodic table you know that 118 elements, 118 elements हमारे पास present है, और जितने भी elements होते हैं वो अपने ही atom से मिलकर बनते हैं. तो elements क्या होते हैं? Which formed by only one kind of particles. तो एलिमेंट्स को हम फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं थ्री पार्ट्स में: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. इन द प्रीवियस क्लास आपने ये चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो व्हाट इज मेटल? मेटल क्या होते हैं? ये
ऑलरेडी यू नो अबाउट दीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स की नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं, नंबर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, नंबर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं. तो अगर हम बात करें तो मेटल्स क्या है? मेटल्स वो सब्सटेंसेज हैं जो बेसिकली सॉलिड नेचर के होते हैं एक्सेप्ट वन विच इज कॉल्ड मर्करी. मेटल्स वो होते हैं which have a malleability property, ductility property, they have a shiny appearance. Metals have a sonority nature. Metals have a sonorous nature means जब हम उसको किसी चीज से हिट करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा. फाइन. नाउ व्हाट इज नॉन मेटल या व्हाट आर नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स किन्हें बोलते हैं? नॉन मेटल्स मेटल से कंपेयर करें तो कम्प्लीटली अपोजिट होते हैं. मेटल्स आर जनरली हार्ड हैं तो नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर. नॉन मेटल होते हैं वो मेलेबल नहीं होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं. they doesn't have a property of sonority. वो सोनोरस नहीं होते हैं, लक्चरस नहीं होते हैं एक्सेप्ट वन और टू. तो ये होते हैं हमारे नॉन मेटल्स. एंड व्हाट आर मेटेलॉइड्स? मेटेलॉइड्स आर द दो सब्सटेंसेस विच हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल. अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल हमारे एग्जाम्पल बहुत से हैं. गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है. और अगर हम बात करें नॉन मेटल की तो नॉन मेटल हमें ऑलमोस्ट ऑल आर इन गैसियस स्टेट. सो Cl2, Br2, I2, these are our non-metals. And what are metalloids? Metalloids in which property of both metal and non-metal are present, they are called metalloids. Example हमारे पास आ जाता है, इसमें सिलिकॉन आ जाता है, जर्मेनियम आ जाता है, एंटीमनी आ जाता है. तो these are the example of metalloids. So now we discuss about the mixtures. Mixture are of two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. तो mixtures क्या होते हैं? mixture हमने जैसे पढ़ा था प्योर, जो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं वो ओनली फॉर्म बाय ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. तो ऐसे ही जो मिक्सचर होते हैं वो टू और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं. तो दे आर कॉल्ड मिक्सचर्स. मिक्सचर को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर वो हमारा एक टाइप का मिक्सचर होता है या सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जो अगर हमने दो पार्टिकल्स आपस में मिक्स करे हैं तो दे आर कंप्लीटली यूनिफॉर्म थ्रू आउट विद ईच अदर. ओके. एंड इन द हेट्रोजीनियस मिक्सचर द पार्टिकल जो आपने दो पार्टिकल मिक्स किए हैं दे आर नॉट कंप्लीटली यूनिफॉर्म थ्रू आउट. फाइन. मतलब जो जिन्हें हम मिलाते हैं तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं. सपोज जो हमारी मिक्सचर ऑफ एयर है इट इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस. एंड अगर मैं बात करूं हेट्रोजीनियस की तो हमने सपोज लिया, हमने आयरन लिया, आयरन के साथ कॉमन सोल्ट लिया, तो वी नो दैट दे आर नॉट कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर. तो इट इज एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. फाइन. फाइन. नाउ हमारा एक टॉपिक स्किप होता है यहाँ पे. व्हाट आर कंपाउंड्स? कंपाउंड्स क्या है? अभी हमने बात की थी प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं. प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो फॉर्म होते हैं सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से, है ना. या फिर हम बोल सकते हैं पार्टिकल्स डिफरेंट हो बट उनकी रेशियो सेम हो. तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनके पार्टिकल्स तो अलग अलग हैं बट उनकी जो रेशियो है वो फिक्स है. फॉर एग्जांपल हमारे पास है वाटर H2O. वाटर की रेशियो हमेशा फिक्स रहती है. वाटर की रेशियो हमारे पास कितनी रहती है? वाटर की रेशियो हमारे पास रहती है ऑलवेज 1:8. चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो वाटर की रेशियो हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी. तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? फॉर्म बाय द two or more different kind of elements but their composition is always remain same. So they are called compounds. And the compounds are further categorized into two parts, organic compounds and inorganic compounds. तो इसको हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पर. compounds क्या होते हैं? compounds are further categorized into two parts, organic compounds and inorganic compounds. तो व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हमें, जिसका जो हमारा सोर्स है वो लिविंग है, विच वी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स. दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एंड व्हाट आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स? विच आर गेट फ्रॉम द नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, या हम बोल सकते हैं जिनको हम गेट करते हैं अर्थ क्रस्ट से. तो ये होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारे क्या आ जाते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमारे आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन. तो ये होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. एंड व्हाट आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच वी गेट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. तो इसमें हमारे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. वॉशिंग सोडा, पीओपी, gypsum. So these are the example of inorganic substances. Now we discuss about some inorganic substances. Inorganic substances like NaCl, which is called rock salt, also called common salt,
Na2CO3.10H2O, sodium carbonate decahydrate, which is called washing soda, Na8CO3, sodium bicarbonate, which is called baking soda, Na2SO4.10H2O, which is called globular salt, CaO, which is called quicklime, CaOH की whole twice, which is called slaked lime, CaCO3, which is called marble, also called limestone, CaSO4.10-2H2O, which is called gypsum, CaSO4.5H2O, which is called POP, CuSO4.5H2O, which is called blue vitriol, MgSO4.7H2O, which is called Epsom, H2SO4, which is called king of chemical and also called oil of vitriol. So, in our today's lecture, we discuss about the chemistry, their application of chemistry and the matter, what are the classification of matter, and in our tomorrow's topic we will discuss about the properties of matter and their measurement.